السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میرا نام زبیر ہے۔ آج پھر سے میں آپ لوگوں کے لیے نئی ویڈیو اور زبردست ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ لوگوں نے جو 3 ویڈیو میں دیکھا تھا، ڈاکٹر ذاکر نائک اور ونل کیمبل نے تقریر کی تھی اور کیسے ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنا لوہا منوایا، اور اس ویڈیو میں سوال اور جواب ہوگا۔ انشاءاللہ ڈاکٹر ذاکر نائک دین الحق کا لوہا منوا کے ہی دم لے گا۔ تو چلو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ شکریہ ڈاکٹر کیمبل، ڈاکٹر ذاکر نائک، آپ کے خطابات کا اور اسی طرح جوابات کا۔ آخر میں ہمارے پاس سامعین کی شرکت کا دور ہے، جس کا نام ہے سوالات و جوابات کا دورانیہ۔ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے 60 منٹوں کے محدود وقت میں زیادہ سے زیادہ جو اب ہمارے پاس بچا ہے، ہم چاہیں گے کہ ان قوانین کی پابندی کی جائے۔ آپ کے سوالات ہونے چاہیے اس موضوع کے حوالے سے کہ قرآن اور بائبل سائنس کی روشنی کے عنوان پر۔ سوالات جو موضوع سے ہٹ کر ہوں گے ان کے جوابات نہیں دیے جائیں گے۔ ازراہ کرم سوال موضوع سے متعلق کیجئے اور مختصر۔ یہ نہ تو خطاب کرنے کا وقت ہے اور نہ ہی رد عمل ظاہر کرنے کا وقت ہے سوالات کرنے والوں کے لیے۔ ڈاکٹر ولیم کیمبل کو اور ڈاکٹر ذاکر نائک کو جواب دینے چاہیے جامع انداز میں، اور ہر جواب کے لیے 5 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لینا چاہیے۔ 4 مائکس مہیا کر دیے گئے ہیں اس ہال میں ان پر سوالات کرنے کے لیے۔ 2 سٹیج کے سامنے مرد حضرات کے لیے اور 2 پچھلی والی وسطی قطاروں کے آخر میں خواتین کے لیے۔ وہ جو لوگ سوالات کرنا چاہیں گے ڈاکٹر ولیم کیمبل سے، برائے مہربانی وہ قطار بنا لے مائکس کے پیچھے میری بائیں جانب، مرد سامنے کی جانب، خواتین پچھلی جانب۔ اور وہ جو سوالات کرنا چاہیں گے ڈاکٹر ذاکر سے، ازراہ کرم قطار بنا لیں مائکس کے پیچھے میری دائیں جانب، مرد سامنے کی جانب اور خواتین پچھلی جانب۔ میں چاہوں گا وہ سامعین جو بالکنی میں ہیں ہماری معذرت قبول کریں۔ ہم خوش ہیں کہ یہ طویل دورانیے تک بھرا ہوا حال رہا، لیکن برائے مہربانی آپ کو تکلیف کرنی ہوگی، نیچے آنے کی زحمت کریں اگر آپ سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ ایک وقت میں صرف ایک ہی سوال کرنے کی آپ کو اجازت ہے۔ اگر آپ دوسرا سوال کرنا چاہیں تو قطار بنائیں پیچھے دوبارہ اپنا دوسرا سوال کرنے کے لیے۔ تحریر کردہ سوالات انڈیکس کارڈ پر رضاکار اکٹھے کریں گے آپ کے درمیان سے۔ انہیں ثانوی اہمیت دی جائے گی مائکس پر کیے جانے والے سوالات کے بعد، جن کے جوابات مقررین دیں گے۔ ازراہ کرم کارڈ پر ضرور لکھیں آپ کا سوال کس سے ہے، ڈاکٹر ولیم کیمبل سے یا ڈاکٹر ذاکر نائک سے، تاکہ ان سب کو مناسب صندوقچوں میں ڈالا جا سکے۔ آپ کے سامنے ان شفاف صندوقچوں میں جن کے اوپر ڈاکٹر ولیم کیمبل اور ڈاکٹر ذاکر نائک لکھا ہوا ہے، تاکہ سوالات ہلائے جا سکیں، منتظمین سے اور مقررین خود بھی سوالات کا انتخاب کر سکیں۔ یہاں پر ان کو جانچے گا مقررین کا پینل، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ سوالات موضوع سے مطابقت رکھتے ہیں، اور منتظمین ان کی منظوری دیں گے تاکہ منتظمین کے مائک پر پیش کیے جا سکیں، جن کا مقررین کو جواب دینا ہوگا۔ ازرائے کرم اپنا نام اور پیشہ بتائیں سوال کرنے سے پہلے۔ ہم ایک وقت میں ایک سوال کی اجازت دیں گے۔ گھڑی کی چال کے لحاظ سے باری باری دونوں مقررین سے سوالات کیے جائیں گے۔ تو پہلا سوال سٹیج کے سامنے سے ہوگا، اور دوسرا سوال بھی سٹیج کے سامنے سے، اور تیسرا سوال میری بائیں جانب پیچھے سے ہوگا، اور چوتھا سوال میری دائیں جانب پیچھے سے، اور یوں ہی چلے گا۔ ہم اجازت دیں گے تقریباً 40 منٹ کی ان سوالات کے لیے، پھر ہم رجوع کریں گے جانب ان سوالات کی جو پرچیوں پر ہوں گے۔ اب پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، اس مائک سے جو میری بائیں طرف ہے ڈاکٹر ولیم کیمبل کے لیے۔ میں پوچھنا چاہوں گا ڈاکٹر ولیم کیمبل سے کہ پیدائش میں جب یہ سیلاب کے متعلق بیان کرتی ہے، نوح کے سیلاب کے متعلق، اس میں کہا گیا ہے کہ پانی نے تمام روئے زمین کو ڈھانپ لیا ہے، تمام تر مخلوقات کو، پہاڑوں کو اور ہر چیز کو، اور کہا گیا ہے کہ اس نے ڈھانپ لیا ہے کرۂ ارض کے بلند ترین پہاڑ کو، اور جو کہ تھی 15 کیوبک تک، اور جو کہ عربی میں 15 فٹ بنتی ہے، یعنی کہ قدم۔ تو ہم سائنسی لحاظ سے جانتے ہیں کہ کرۂ ارض کے بلند ترین پہاڑ کی بلندی 15 فٹ نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ اس سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ تو پھر پیدائش میں یہ کیسے کہا گیا ہے کہ پانی نے ہر ایک چیز کو ڈھانپ دیا؟
हर पहाड़ को, रुए जमीन पर बुलंद तरीन पहाड़ को, जबकि वो खुद 15 फीट था। आपके सवाल का शुक्रिया। मेरे ख्याल में यह कहा गया है कि पानी पहाड़ों से भी बुलंद हो गया था। अगर बुलंद तरीन पहाड़ 3000 मीटर है तो पानी इससे भी 15 मीटर या 15 फुट बुलंद हो गया था। ताहम भाई, हम माजरत के साथ कह रहे हैं कि हम मुदाखलती सवाल की इजाजत नहीं देते। सवाल करने वाला अपना सवाल पेश करे और बस, और फिर मुकर्रर जिसे चाहे उसका जवाब दे सकता है। शुक्रिया। और मैं इसे यूं देखता हूं, कुरान में मेरा ख्याल है ये सही समझा जाएगा, जैसा कि सूरत नंबर 11 आयत नंबर 40 में बयान है, जमीन के चश्मे उबल पड़े और पानी की लहरें पहाड़ जैसी बुलंद हुई। और फिर ये यहाँ पर कहती है कि इस जगह ये हमें फहरिस्त देती है अंबिया की कि कोई भी नबी नहीं था नूह से पहले। मैं जानता हूं कि आदम भी नबी हो सकते हैं, लेकिन मैं इस फहरिस्त में तस्करा नहीं है। मेरे ख्याल में कुरान में भी ये कहा गया है कि पूरी दुनिया ढांपती गई। जी भाई, सवाल है डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए। जरा रुकिए, जरा माफ कीजिएगा। दूसरा सवाल किया जाएगा इस माइक से जो मेरी दाईं तरफ है, डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए। ओके, आपने कहा कि अल्लाह रोशनी को मुनक्किस करता है और वो नूर से बना है। मुझे हकीकत में समझ ही नहीं आई। भाई ने सवाल पेश किया, उनको मेरी वजाहत की समझ नहीं आई जो मैंने जवाबी दलाइल के तौर पर की डॉक्टर विलियम कैम्बल के लिए। नूर और अल्लाह के मुतालिक कुरान कहता है सूरह नूर में सूरह नंबर 24 आयत नंबर 35 कि अल्लाह है नूर समावात वल अर्द, रोशनी है जमीन और आसमान की, वो रोशनी है। रोशनी का मतलब कुरान में है यानी मुनक्किस करदा रोशनी, ली गई रोशनी। वो मुझसे पूछ रहे हैं क्या इसका मतलब है कि अल्लाह की रोशनी भी ली गई है? तो इसका जवाब दिया गया है। अगर आप आयत को आगे पढ़ें, ये कहती है कि ये एक ताक की मिसल है और ताक में एक चिराग है। चिराग की रोशनी उसकी अपनी होती है। इसका मतलब है अल्लाह की अपनी जाती रोशनी है और इसी तरह इसकी अपनी रोशनी होने के नाते ये रोशनी मुनक्किस हो रही है। रोशनी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दोबारा मुनक्किस हो रही है खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। यानी बरकी चिराग जो आप यहां देख रहे हैं, इसके दरमियान एक ट्यूब है, चिराग जिसे आप कह सकते हैं इससे सिराज और वहाज और दिया, और मुनक्किस करने वाला जैसे मुनीर या नूर, ली गई रोशनी या रोशनी का इनेकास। मगर कुदरती तौर पर यह रोशनी दर हकीकत जिस्मानी रोशनी की नुमाइंदगी नहीं करती जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये तो रूहानी रोशनी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। लेकिन जैसा मैंने जवाब दिया डॉक्टर विलियम कैम्बल को, और चूंकि मेरे पास 5 मिनट है मैं इनसे इस्तेफादा करूंगा। डॉक्टर विलियम कैम्बल ने जवाब दिया नूह अलैहिस्सलाम के बारे में। मैं वो शख्स हूं जो हम आहंगी का रवैया रखता है बाइबल के साथ और मुखालिफाना इस्तलाल कुरान से, क्योंकि दोनों सूरतों में अल्हम्दुलिल्लाह कुरान इम्तिहान पास करेगा। और हत्ता कि मैं मुत्तफिक भी हो जाऊं डॉक्टर विलियम कैम्बल से, और मैं मुत्तफिक हूं वो सही है कि वो था 15 फुट ऊंचा बुलंद तरीन पहाड़ से। लेकिन इसका जिक्र है पैदाइश में बाब नंबर 7 आयत नंबर 19 और 20 में, यानी कि सारी दुनिया पानी में डूब गई थी। और इसके अलावा आसार कदीमा के शवाहिद हमें आज का हाल दिखाते हैं। अगर नूह के जमाने के इल्म निसाब के हवाले से तखमीना लगाएं तो ये 21वीं सदी से 22वीं सदी कबल मसीह बनता है। आसार कदीमा के शवाहिद आज हमें दिखाते हैं कि तीसरा दौर बाबल के हुक्मरानों का और 11वां सिलसिला मिस्र के हुक्मरानों का मौजूद था, और 21वीं सदी और 22वीं सदी कबल मसीह में, और इस दौरान कोई सैलाब का सबूत नहीं, और वो हुकूमत चलाते रहे। इसलिए आसार कदीमा के सबूतों से पता चला है कि ये नामुमकिन है कि जमीन पानी में गर्क हो गई थी, कि सारी जमीन गर्क हो गई पानी के अंदर। 21वीं सदी और 22वीं सदी कबल मसीह में कुरान के बारे में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे कुरान के बारे में? पहला नुक्ता, कुरान ने तारीख का तयन नहीं किया। जैसा 21वीं सदी कबल मसीह थी या 50वीं सदी कोई तारीख नहीं थी। दूसरा नुक्ता, कुरान कहीं भी कुरान ये नहीं कहता कि सारी दुनिया पानी में गर्क हो गई थी। ये बात करता है नूह अलैहिस्सलाम के मुतालिक और उनकी कौम और उनके लोगों के मुतालिक। लोगों का छोटा सा गिरोह या हो सकता है उनका बड़ा गिरोह। आसार कदीमा के शवाहिद ये आज बताते हैं और माहिरीन भी बताते हैं ये कि हमें कोई एतराज नहीं, मुमकिन है कि दुनिया का कुछ हिस्सा पानी में गर्क हो गया हो, लेकिन पूरी दुनिया ये मुमकिन नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मुताबिकत रखता है आसार कदीमा की जदीद दरियाफ्तों के साथ, बाइबल नहीं रखती। इसके अलावा अगर आप पढ़ें पैदाइश बाब नंबर 6 आयत नंबर 15 और 16, तो ये बात करती है खुदा के मुतालिक उसने नूह अलैहिस्सलाम को बताया आप एक कश्ती तैयार करें जिसकी लंबाई 300 हाथ लंबी और चौड़ाई 50 हाथ तक चौड़ी और
लंबाई 30 हाथ तक, क्यूबिक 1.5 फुट का होता है। भाई ने यहाँ गलती की, ये 1.5 फुट होता है। और नई बैनुल अक़वामी इरशाद कहती है कि 450 फुट लंबी और 75 फुट चौड़ी और तकरीबन 45 फुट बुलंद थी। वहां 30 हाथ बुलंद। अगर आप इसकी पैमाइश करें जो मैंने तखमीना लगाया, तो ये कम से कम बनती है 150,000 मकाब फुट और रकबे के लिहाज से 33,750 बनती है। और बाइबल कहती है कि उसकी 3 मंजिलें थी, निचला दर्जा, दूसरा दर्जा, तीसरा दर्जा। अगर इसे 3 से ज़रब दें तो आपको जवाब मिलेगा 101,250 मुरब्बा फुट। यह है उसका रकबा। जरा सोचिए, एक एक जोड़ा दुनिया की तमाम मखलूकात का क्या समा गया था पूरे 101,250 मुरब्बा फुट में। जरा सोचिए, क्या यह मुमकिन है? अरबों मखलूकात है पूरी दुनिया में। अगर मैं कहूं कि इस पूरे हॉल में 10 लाख लोग इस हॉल में आ गए, क्या आप मानेंगे? मुझे याद है, मेरा ख्याल है पिछले साल मैंने खिताब किया केरला में, वहां 10 लाख लोग थे। ये सबसे बड़ा इज्तिमा था जहां मैंने खिताब किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसके करम से। 10 लाख लोग, मैंने हुजूम का आखिर देखा ही नहीं। ये कोई हॉल नहीं था, ये एक बड़ा साहिल था। वाह, मैं किसी को भी न देख सका, मां सिवाय चंद लोगों के जो सामने थे, और बस कुछ लोगों का मुआवजा करें वहां 10 लाख लोगों से। अगर आप वीडियो कैसेट देखें तो अंदाजा करें कि 10 लाख कितना होता है। मैदान अरफात की तरह आप देखते हैं 25 लाख लोग मैदान अरफात में। इस रकबे में 101,250 मुरब्बा फीट के या 150,000 मकाब फीट के, ये तो नामुमकिन है। और मजीद ये कि 40 दिन तक वो खाते भी रहे, रफा हाजत भी करते रहे। अगर मैं कहूं कि 10 लाख लोग इस हाल में समा गए तो यकीन करेंगे? पर साइंसी लिहाज से कई एक ऐसे उमूर हैं जहां बड़ी बड़ी साइंसी गलतियां हैं बाइबल में। क्या हम अगला सवाल ले सकते हैं डॉक्टर कैम्बल के लिए, वहां पीछे वाले माइक से? माशाल्लाह, डॉक्टर जाकिर नाइक अपने सवाल के भी जवाब दे रहे हैं, उसके भी सवाल के जवाब दे रहे हैं। नहीं रुकिए, ये सवाल है सिर्फ डॉक्टर कैम्बल के लिए, तो आपको रुकना पड़ेगा। ये अगला सवाल किया जाएगा डॉक्टर कैम्बल के लिए। जी, मैं ये सवाल बल्कि आजमाइश पूछना चाहूंगा डॉक्टर विलियम कैम्बल से। आप क्यों नहीं मुजाहरा करते झूठों की परख वाले टेस्ट का? बाइबल में मरकज की अंजील में बाब नंबर 16 आयत नंबर 17 और 18, और लोगों को साबित करें यहां इसी वक्त कि आप एक सच्चे ईसाई मोमिन हैं। मैं मुत्तफिक नहीं हूं डॉक्टर नाइक की इस वजाहत से। खुदावंद यसू मसीह तो खुद आजमाए गए, और शैतान ने कहा कि अगर तुम खुदा के बेटे हो तो खुद को इबादत गाह से नीचे गिरा दो, और यसू ने कहा कि तुम नहीं वरगला सकते खुदावंद अपने खुदा को। तो अगर मैं ये कहूं कि मैं यकीन हासिल करना चाहता हूं और मौजज़ा दिखाने लगा हूं आप सबके सामने, तो मैं खुदा को ललकार रहा हूं। मेरे दोस्त हैरी रेडक्लिफ ने जाने का वादा कर लिया था, बस उसने फैसला कर लिया अपना वादा पूरा करने का, खुदा पर भरोसा किया कि वो अपनी मर्जी करे। सो ये मुख्तलिफ सूरत हाल है, मैं खुदा को नहीं ललकारूंगा। सवाल है डॉक्टर नाइक के लिए। हो सकता है पीछे से सवाल लें। जी बहन। वो है डॉक्टर नाइक। ओ कैम्बल, वो पीछे। आपका सवाल है डॉक्टर नाइक के लिए, पीछे से खवातीन। मेरा सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक से है। ईसाई नजरिया तस्लीस का तस्वुर पेश करते हैं साइंसी बुनियादों पर पानी की मिसाल देकर, जो 3 हालतों में हो सकता है, ठोस, माया और गैस, यानी बर्फ, पानी और बुखारात की सूरत में। इसी तरह एक खुदा तस्लीस का हामिल खुदा है, बाप, बेटा और रूहुल कुद्दुस। क्या यह वजाहत साइंसी एतबार से दुरुस्त है? इससे पहले कि मैं आपको जवाब दूं, हमें खुदा को ललकारना नहीं चाहिए, खुदा को आजमाना नहीं चाहिए, लेकिन हम खुदा का इम्तिहान नहीं ले रहे, हम इंसान का इम्तिहान ले रहे हैं। खुदा को आजमाना नहीं चाहिए, लेकिन हम यहाँ आपका इम्तिहान ले रहे हैं। खुदा वादा करता है, कोई भी ईसाई मोमिन जो मोहलिक जहर पिएगा वो मरेगा नहीं, वो अहल होगा दूसरी जुबानों में बात करने के। हम खुदा को नहीं आजमा रहे, खुदा तो बरहक है, वो देखेगा कि हर मोमिन बोल सकता है। हम तो आपको आजमा रहे, आप मोमिन है कि नहीं। अब सवाल की तरफ आते हैं बहन के, कई ईसाई हैं जो कहते हैं साइंसी एतबार से हम साबित कर सकते हैं तस्वुर तस्लीस, जैसे कि पानी 3 हालतों में हो सकता है, ठोस, माया और गैस, जैसे बर्फ, पानी और बुखारात। तो इस तरह से हम जानते हैं खुदा 3 सूरतों में है, बाप, बेटा और रूहुल कुद्स। कैसे जवाब देंगे इसका कि ये साइंसी एतबार से दुरुस्त है? साइंसी एतबार से हम मानते हैं पानी 3 हालतों में हो सकता है, ठोस, माया और गैस, बर्फ,
पानी और बुखारात। लेकिन साइंसी एतबार से हम ये भी जानते हैं पानी की अज्जाई तरकीब भी बरकरार रहते हैं। H2O, 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का। अज्जाई तरकीब भी वही है और अज्जा भी वही रहते हैं, अलबत्ता हालत बदलती रहती है। खैर कोई बात नहीं, आइए परखें नजरिया तसलीस को। तो नजरिया तसलीस को बाप बेटा रूहुल कुदस। हालत, वो कहते हैं हालत बदलती है, ठीक है, दलाइल के तौर पे हम मान लेते हैं। क्या अज्जाई तरकीबी बदलते हैं? खुदा और रूहुल कुदस तो रूह से बने हुए हैं, इंसान बने हुए हैं गोश्त और हड्डियों से, वो एक जैसे नहीं। इंसान मांगता है खाने को, खुदा को जरूरत नहीं खाने की जिंदा रहने के लिए, वो एक जैसे नहीं है। और इसकी तस्दीक की है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद, हाँ खुद, लूका की अंजील में बाब नंबर 24 आयत नंबर 36 से लेकर 39 तक वो कहते हैं कि मेरे हाथ और पांव छुओ, मुझे परखो और देखो, एक रूह के हड्डियां और गोश्त नहीं होती। उन्होंने कहा मेरे हाथ और पांव छू कर देखो, मुझे परखो और देखो, एक रूह के गोश्त और हड्डियां नहीं होती। उन्होंने अपने हाथ बढ़ाए और देखा और उन्होंने खुशियां मनाई और उन्होंने कहा क्या तुम्हारे पास कोई गोश्त खाने के लिए है? और उन्होंने दी भुनी हुई मछली और शहद के छत्ते का एक टुकड़ा और उन्होंने खाया, उनके यकीन के लिए कि वो खुदा थे। उन्होंने साबित किया वो खुदा नहीं थे। उन्होंने खाया, वो गोश्त और हड्डियों से बने थे, जबकि रूह के हड्डियां और गोश्त नहीं होते। ये साबित हुआ कि ये साइंसी एतबार से मुमकिन नहीं है कि बाप बेटा और रूहुल कुदस, बाप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और रूहुल कुदस खुद खुदा है। और तस्वुर तसलीस, लफ्ज तसलीस कहीं भी नहीं पाया जाता बाइबल में। लफ्ज तसलीस नहीं है बाइबल में, लेकिन ये कुरान में पाया जाता है। कुरान कहता है सूरत निसा सूरह 4 आयत 171 में, वला तकुलू सलासा, ना कहो 3 खुदा, इंतौ खैरुल लकुम, बाज आ जाओ ये तुम्हारे लिए बेहतर है। तसलीस यहां भी है सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 73 जो कहती है कि लक़द कफ़रल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहु सालिसु सलासा, वो कुफ्र करते हैं, वो बेहुरमती करते हैं जो ये कहते हैं कि अल्लाह 3 हिस्सों में बटा है, वो 3 हिस्सों से मिलकर बना है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी नहीं कहा कि वो खुदा है। नजरिया तसलीस कहीं भी नहीं है बाइबल में। सिर्फ एक आयत जो नजरिया तसलीस के बहुत करीब हो सकती है, यह है यूहन्ना के पहले खत में बाब नंबर 5 आयत नंबर 7 जो कहती है कि आसमान का हिसाब रखने वाले 3 हैं, यानी बाप, कलमा और रूहुल कुदस, और ये तीनों एक है। लेकिन अगर आप नजरसानी शुदा एडिशन देखें, जिस पर नजरसानी की 32 उलमा ने, ईसाई उलमा, बुलंद तरीन मुकाम रखने वाले, जिनकी 50 मुख्तलिफ मुआविन मजहबी फिरकों ने हिमायत की है, वो कहते हैं कि ये आयत बाइबल की पहले खत में यूहन्ना के बाब 5 आयत नंबर 7 ये है तहरीक शुदा, झूठ का पलंदा है और मन घड़त है, इसे निकाल फेंका गया बाइबल से। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी दावा नहीं किया खुदाई का। यहाँ पर कोई भी एक ऐसा बयान नहीं है पूरी की पूरी बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा हो कि मैं खुदा हूँ या मेरी इबादत करो। अगर आप बाइबल को पढ़ें तो इसमें लिखा है कि यूहन्ना की अंजील में बाब नंबर 14 आयत नंबर 28 में उसने कहा मेरा बाप मुझसे अजीम तर है। यूहन्ना की अंजील बाब नंबर 10 आयत नंबर 29 में मेरा बाप सबसे अजीम तर है। मती की अंजील बाब नंबर 12 आयत नंबर 28 में मैं भगाता हूँ शैतानों को खुदाए रूह की ताकत से। लूका की अंजील बाब नंबर 11 आयत नंबर 20 में मैं खुदा की उंगली से शैतान को भगाता हूँ। यूहन्ना की अंजील बाब नंबर 5 आयत नंबर 30 मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता, जैसा कि मैंने सुना है मैं फैसला करता हूँ और मेरा फैसला मुनसिफाना है क्योंकि मैं नहीं चाहता अपनी मर्जी। कोई भी अगर कहता है मैं अपनी मर्जी नहीं चाहता, खुदा की मर्जी चाहता हूँ, वो मुस्लिम है। मुस्लिम मतलब वो बंदा जो ताबे कर दे अपने आप को अल्लाह के। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरी नहीं बल्कि खुदा की मर्जी। वो मुस्लिम थे और वो थे अल्हम्दुलिल्लाह एक बरगुज़ीदा पैगम्बर अल्लाह ताला के। हम मानते हैं, हमारा अकीदा है कि वो पैदा हुए मुजज़ाती तौर पर किसी मर्द की मुदाखलत के बगैर। हम मानते हैं उन्होंने जिंदा किया मुर्दों को खुदा की इजाजत से। हम मानते हैं कि उन्होंने शिफा बख्शी पैदाइशी अंधों को और कोढ़ के मरीजों को। हम एहतराम करते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक बरगुज़ीदा पैगम्बर के तौर पर खुदा के, लेकिन वो खुदा नहीं है और वो तसलीस का हिस्सा नहीं है, इसका वजूद ही नहीं। कुरान कहता है कुल हु अल्लाहु अहद, कह दीजिए अल्लाह वाहिद है। इससे पहले कि हम माइक से अगला सवाल लें, मैंने पहले ही कह दिया था कि खवातीन वहां कतार बना लें। बदकिस्मती से उन्होंने वहां कतार नहीं बनाई, तो हमें दिक्कत है सवालात में तवाजुन रखने के लिए। खैर, हम नजरअंदाज कर देते हैं उन हिदायत को जो माइक्स पर हैं। अगर खवातीन यहाँ से पूछना चाहती हैं, हम इजाजत देते हैं, आप तवाजुन रखिए। अपनी जरूरत से ज्यादा हाल खचाखच भरा हुआ है, हमें इस चीज का एहसास है। हम इजाजत देते हैं अब एक सवाल की जनाब डॉक्टर कैम्बल के लिए यहाँ से, और पीछे वाला माइक मखसूस होगा वो लोग जो सवालात पूछना चाहते हैं मर्दों में से डॉक्टर जाकिर के लिए। इसी तरह खवातीन के लिए
और वहाँ सामने वाला माइक होगा डॉक्टर कैम्बल के लिए और पीछे वाला माइक डॉक्टर जाकिर के लिए। क्या ये लोग डॉक्टर जाकिर के लिए कतार बनाए हुए हैं? ठीक है। क्या जो लोग यहाँ हैं डॉक्टर कैम्बल के लिए हैं? ठीक है। मेरा ख्याल है उन्होंने खुद ही अपनी सफबंदी कर ली है। इंतजामिया के तरीकेकार को उन्होंने बदल लिया है। हम इसका एहतराम करते हैं इस भरे हुए हॉल की वजह से। और अगला सवाल है डॉक्टर कैम्बल के लिए इस माइक से। शुक्रिया। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज की रात सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं, उसके लिए जो तमाम बनीनो इंसान का खुदा है। आज रात बहुत अच्छा मुबाहिसा हुआ, एक ऐसा मुबाहिसा जिसमें बात की गई है एक अजीम उन्वान पर बनीनो इंसान के लिए, तमाम बनीनो इंसान के लिए। और हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम सब इकट्ठे हुए हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, शुरू अल्लाह के नाम से। सवाल ये है कि हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं आज रात जिस मकसद के लिए, उससे हमें फायदा उठाना चाहिए। इस लिहाज से मैं पूछता हूँ डॉक्टर कैम्बल से सवाल के तौर पर और आपके साथियों से भी, इस मुबाहिसे का मकसद पूरा हुआ है क्या? क्या इसने कम से कम आपके दिल को खोला है? क्या कोई किरण पैदा हुई? क्या मजीद कुछ जाने इस्लाम की हकानियत के बारे में? शुक्रिया। कि सूरज जो आपने किया, डॉक्टर नाइक ने कहा ऐसी कोई जगह नहीं जहां यसू ने कहा हो कि वो खुदा है। मरकस में बाब 14 आयत 61, उसने जवाब न दिया और सरदार काहिन ने उससे दोबारा पूछा और उससे कहने लगा, एक मिसाल पालूस की है। वो गया जब उसका जहाज तबाह हो गया और यसू ने कहा हां मैं हूं। तो उन्होंने कहा मैं खुदा का बेटा हूं, और उन्होंने कहा कि वो खुदा है। और बाइबल वाज़े तौर पर कहती है, मैं जानता हूं कि उन्होंने हवाला दिया उन आयात का जिनका हवाला डॉक्टर नाइक देना चाहते थे, जिनमें यसू अपनी बशरी सूरत में थे, लेकिन दूसरी आयात में जिनमें उन्होंने कहा मैं और बाप एक हैं, लिखा है इब्तदा में एक कलमा था और कलमा खुदा के साथ था और कलमा खुदा था और खुदा इंसानी रूप में आया और हमारे साथ रहा। यसू के बपतिस्मे में बाप बोला और कहा कि ये मेरा सबसे प्यारा बेटा है। यसू भी वहीं थे और रूहुल कुदुस उन पर उतरा। बाप, बेटा और रूहुल कुदुस, हमने ये बातें नहीं घड़ी अपने दिमागों से। आप इस बात को पेश नजर रखें। और अब मेरे एक दोस्त ने ये सवाल पूछा, हमने बहुत कुछ सीखा है और मैं आरजूमंद हूं सीखने के लिए। मेरा अभी ये ख्याल है कि 500 गवाहियों का यस्सु मसीह को देखना कि वो मुर्दों में से जी उठे मुझे ज्यादा तकवीयत बख्शता है, और मोहम्मद आए 600 साल बाद सिर्फ एक गवाह के साथ। शुक्रिया। अब हम सवाल लेंगे डॉक्टर जाकिर के लिए पिछले माइक से। जी बहन। पहले डॉक्टर कैम्बल ने कायनात के बारे में कुरानी अफकार के मुकाबले में मफरूजाती झूठे हकायक पेश करने की कोशिश की, फिर आपने इनको रद्द किया जिनका जवाब नहीं दिया गया। ताहम बाइबल क्या कहती है जमीन की साख्त के मुतालिक और इसके दीगर पहलुओं के बारे में? बहन ने सवाल पूछा कि मैंने बात नहीं की कि बाइबल जमीन की साख्त के बारे में क्या कहती है। वक्त ना होने के बाइस मैं निशानदेही कर सकता हूँ मजीद 100 नुकात की, मगर खैर मेरी बहन जानना चाहती है कि बाइबल क्या कहती है जमीन की साख्त के मुतालिक। उसमें लिखा है, बाइबल में बयान है मती की अंजील में बाब नंबर 4 आयत नंबर 8, वो कहती है, वही हवाला जो डॉक्टर विलियम कैम्बल ने दिया तरकीब गुनाह के ज़मन में, कि शैतान ले गया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को एक बहुत ही बुलंद तरीन पहाड़ पर और उन्हें दिखाई तमाम तर बादशाहते दुनिया की और उनकी शान शौकत। लूका की अंजील बाब नंबर 4 आयत नंबर 5, शैतान इन्हें ऊंचे पहाड़ पर ले गया और इन्हें दिखाई शान शौकत दुनिया की तमाम तर बादशाहतों की। अब अगर आप जाएं बुलंद तरीन पहाड़ पर, दुनिया के ऊंचे पहाड़ पर जैसे माउंट एवरेस्ट, और फर्ज करें आपकी बिनाई बहुत अच्छी है और आप देख सकते हैं हजारों मील तक एक साथ, और अब आप इस काबिल नहीं होंगे कि देख सकें तमाम तर सल्तनतें दुनिया की, क्योंकि हम जानते हैं कि दुनिया गोल है। आप इस काबिल नहीं होंगे कि आप देख सकें जो बादशाहते दुनिया की दूसरी जानिब है। आप सिर्फ एक ही तरह देख सकते थे कि अगर दुनिया चपटी होती। यही बयान है बाइबल का कि दुनिया चपटी है, बिल्कुल चपटी। मजीद बरा यही बयान दोहराया गया है दानियल की किताब में बाब नंबर 4 आयत नंबर 10 और 11। वो कहती है, ख्वाब में एक दरख्त बुलंद हो गया आसमान तक, और जब दरख्त आसमान तक बुलंद हो गया वो इंतहा तक पहुंचा
کہ ہر کوئی دنیا کے کونے کونے سے اس درخت کو دیکھ سکتا تھا. یہ صرف اس وقت ممکن ہے اگر زمین کی ساکھ چپٹی ہو. اگر درخت بہت اونچا تھا اور دنیا چپٹی تھی تو یہ ممکن ہے. آج یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ دنیا گول ہے. آپ اس قابل نہیں ہوں گے کہ درخت کو دیکھیں کتنا ہی لمبا کیوں نہ ہو مخالف سمت سے زمین کے گول ہونے کی صورت میں. اگر آپ مزید پڑھیں یہ لکھا ہے پہلی تواریخ کی کتاب میں باب نمبر 16 آیت نمبر 30 کہ زمین حرکت نہیں کرتی. اور یہی بات دہرائی گئی ہے 93 زبور میں اس کی آیت نمبر 1 میں کہ خدا نے زمین کو ٹھہرایا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ زمین حرکت نہیں کرتی. اور نئی بین الاقوامی ارشاد بھی یہ کہتی ہے خدا نے زمین کو قائم کیا ہے اور اس کی حرکت کو روکا ہوا ہے. گویا کہ 1 منٹ کہ زمین 1 منٹ رہتا ہے یا 1 منٹ رہتا ہے. میں سمجھا کہ 1 منٹ انتظار کریں. ڈاکٹر ولیم کیمبل کے مطابق انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے بائبل میں کئی مقامات پر کہ وہ خدا تھے. آپ دیکھ سکتے ہیں میرا ویڈیو کیسٹ خدا کا تصور بڑے مذاہب میں جس میں ہے تمام تر حوالہ جات اور جوابات. میں صرف وہ حوالہ جات دوں گا جن کا انہوں نے ذکر کیا. میں اور میرا باپ ایک ہے. یہ ہے یوحنا سے باب نمبر 10 آیت نمبر 30 اور ابتدا میں تھا کلمہ. یہ ہے یوحنا سے باب نمبر 1 آیت نمبر 1. آپ سیاق و سباق دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عیسیٰ نے کبھی بھی خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. آپ میری ویڈیو کیسٹ لے سکتے ہیں جو باہر دستیاب ہے. خدا کا تصور بڑے بڑے مذاہب میں اور اسلام اور عیسائیت میں مشترکہ باتیں جس میں یہ تفاصیل دی گئی ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے کبھی بھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا. جی شکریہ. اگلا سوال ہے سامنے والی خاتون کا ڈاکٹر ولیم کیمبل کے لیے. آپ نے اپنے ایک ٹیسٹ کا ذکر کیا کہ سچے مومن اپنے ایمان کے باعث زندہ رہ سکتے ہیں زہر پی کر. آپ کا رسپوتین کے بارے میں کیا خیال ہے جس کو اتنا سائنائڈڈ زہر دیا گیا جو کہ 16 لوگوں کو مارنے کے لیے کافی تھا اور وہ زہر سے نہیں بلکہ خون کے ضائع ہونے سے مرا. وہ سچا عیسائی نہیں تھا جو اس کے ساتھ ایسا ہوا. اس کی وضاحت کیسے کریں گے کہ صرف ایک سچا عیسائی ہی زہر پی سکتا ہے؟ اس کی وضاحت کریں گے؟ میرا نہیں خیال کہ مجھے کوئی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے. راسپوتین عیسائی نہیں تھا لیکن جو کچھ اس کے ساتھ ہوا میرا خیال ہے کہ اس کی کوئی وضاحت نہیں بائبل میں. میں پہلے کہہ چکا ہوں یسوع مسیح خدا کی یہ منشا نہیں ہے کہ ہم یہاں. اس کی مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی. یہ مائک کہاں ہے؟ یہ بول کہاں رہا ہے؟ یہ اپنی بس میں نہیں ہے. اسے ڈر لگ رہا ہے کہ مجھے زہر نہ پلا دے. قطار بنا لیں اور زہر پینا شروع کر دیں اور دیکھیں کہ وہ سچا خدا ہے. ہم آپ کو سننے او معاف کیجیے گا. اور وہاں اسے کچھ بھی نہ ہوا. وہاں ایسا بتایا گیا ہے خدا نے ایسا بتایا کہ ایسا ہی ہوگا. ایک مثال پالوس کی ہے. وہ گیا جب اس کا جہاز تباہ ہو گیا. میرا خیال ہے یونان لیکن میرے ذہن میں غلط جگہ ہے. اور وہ ساحل پہ اترا اور وہ آگ میں لکڑیاں ڈال رہا تھا کہ اسے سانپ نے کاٹ لیا اور وہاں اسے کچھ بھی نہ ہوا. وہ خدا کو نہیں آزما رہا تھا بلکہ وہ تو لکڑیاں آگ میں ڈال رہا تھا. سو یہ مختلف صورتحال ہے. کوئی تبصرہ نہیں. شکریہ. اور اگلا سوال ہے پیچھے سے ڈاکٹر ذاکر کے لیے. ذرا معاف جی بھائی. کیجیے. ذرا سر. جی آپ جاری رکھیں. میں زمین کی گلائی کی بات کرنا چاہتا ہوں. یہ سایہ باب نمبر 40 آیت نمبر 22 میں ہے کہ وہ خدا زمین کے دائرے سے اوپر تاج پوش بیٹھا ہے. شکریہ. پیچھے سے ڈاکٹر. جی بھائی سوال ہے ڈاکٹر ذاکر کے لیے. ڈاکٹر ذاکر آپ نے کہا کوئی بھی غلطی نہیں ہے قرآن میں. میں نے دیکھی ہیں 20 سے زیادہ غلطیاں جو ہیں عربی گرامر میں اور میں آپ کو بتاؤں گا ان میں سے کچھ. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون اس نے کہا سورۃ البقرہ اور الحج میں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین. صحیح کون سی ہے؟ الصابئون یا الصابئین؟ نمبر 1 یا نمبر 2؟ بھائی ایک سوال ایک وقت میں. لیکن ایسی ہی بات کہی گئی ہے قرآن میں سورۃ طٰہٰ آیت 63 ان ھذان لا ساحران. غلط ہے. ان ھذین لا ساحران. کیا وضاحت کر سکتے ہیں؟ سورۃ البقرہ اور الحج. بھائی ہم صرف سوال کے پہلے حصے کا جواب دیں گے. دوسرے حصے کی اجازت نہیں ہوگی کیونکہ ہم کہہ چکے ہیں کہ ہم ایک سوال کی اجازت دیں گے تاکہ دوسروں کو موقع ملے. بھائی نے بڑا اچھا سوال پوچھا. میں مفاہمت کا طریقہ کار اپناؤں گا. چلو مان لیتے ہیں انہوں نے تمام غلطیوں کا ذکر کیا. یہاں پر جس کتاب کا حوالہ دیا وہ عبد الفادی کی ہے. عبد الفادی صحیح. کیا قرآن غلطیوں سے پاک ہے؟ میں کچھ دیکھ سکتا ہوں. ہاں الحمدللہ میری نظر ٹھیک ہے.
आया था कुरान को गलत साबित करने। मैंने कहा था ना डॉक्टर जाकिर नाइक अपना दीन अल हक का लोहा मनवा के ही रहेंगे। मैं तमाम 20 एतराजात का एक साथ जवाब दूंगा, क्योंकि मैंने किताब पढ़ी है। मैं जवाब दूंगा तमाम 20 का इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। भाई एतराज नंबर 1, पहला नुक्ता। पहले नुक्ते को नोट किया जाए कि तमाम अरबी ग्रामर कुरान मजीद से ही ली गई है। कुरान सबसे आला और अरफा अरबी ग्रामर की किताब थी। ये वो किताब है जो अदब का आला तरीन मयार रखती थी। तमाम अरबी ग्रामर कुरान ही से अखज की गई है। कुरान ग्रामर की निसाबी किताब है। चूंकि कुरान ग्रामर की निसाबी किताब है और तमाम ग्रामर कुरान से अखज की गई है, तो कुरान में कोई गलती हो ही नहीं सकती। पहला नुक्ता। एतराज नंबर 2, दूसरा नुक्ता जैसे कि आप एक पैमाना लें और इस पैमाने के ऊपर पैमाइशें हों और आप कहेंगे पैमाइश गलत है, ये बड़ी ही गैर मंतकी बात है। दूसरा नुक्ता, मुख्तलिफ कबीलों में अरब के, आप जानते हैं अरबी, और डॉक्टर विलियम कैम्बल भी मुझसे इत्तफाक करेंगे, मुख्तलिफ अरबी कबीलों में ग्रामर तब्दील होती रही है। और कुछ अरबी कबाइल में एक लफ्ज मुअन्निस है और वही लफ्ज आगे चल के मुज़क्कर हो जाता है। वही लफ्ज दूसरे कबाइल में उसकी ग्रामर तब्दील होती रहती है, हत्ता कि जिन्स तब्दील होती रहती है। तो क्या आप परखेंगे कुरान को गलत ग्रामर के हिसाब से? नहीं। और इसके अलावा कुरान की किताबत बहुत आला और अरफा है, बहुत आला है, ये कहीं ज्यादा बरतर है। और आपको कई किताबें मिलेंगी, इंटरनेट पे जाओ, 12 ग्रामर की गलतियां हैं, 21 ग्रामर की गलतियां हैं, अब्दुल फादी 20 ग्रामर की गलतियां हैं। क्या आप समझते हैं कि ईसाई लोगों ने ये गलतियां बयान की? ये किसने गलतियां निकाली? पता है किसने निकाली? मुसलमानों ने, मुस्लिम उलमाओं ने, जैसे ज़मख़शरी। उन्होंने क्या किया? कुरान की ग्रामर इस कदर आला है कि ये अरबी रिवायती इस्तेमाल के खिलाफ जाती है। कुरान की ग्रामर बहुत आला है, ये साबित करने के लिए कुरान की ग्रामर आला है। उन्होंने मिसालें दी और मैं आपको 2 मिसालें दूंगा जो तमाम 20 सवालात का जवाब देंगी। वो मिसाल देते हैं, जैसा कि आप कुरान में पढ़ें, वो कहती है कि जो कौम थी लूत अलैहिस्सलाम की, उन्होंने तमाम अंबिया का इनकार किया। उन्होंने अंबिया का इनकार किया, ये लिखा है। डॉक्टर कैम्बल ने कहा कि जो पैरोकार थे नूह के, उन्होंने अंबिया का इनकार किया। तारीख से पता चला कि सिर्फ एक पैगंबर भेजा गया उनके पास। ये तो ग्रामर की गलती हुई। कुरान को कहना चाहिए था कि लोगों ने पैगंबर का इनकार किया, ना कि पैगंबरों का। मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। एक आम आदमी ग्रामर के एतबार से, जैसे मैं और आप जानते हैं, शायद ये गलती हो। लेकिन अगर आप पढ़े वो किताबें जो अरबों ने लिखी, क्या है खूबसूरती कुरान की? खूबसूरती कुरान की ये है, क्यों कर कुरान फर्क करता है पैगंबरों का एक पैगंबर से? आप जानते हैं क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि बुनियादी पैगाम तमाम तर पैगंबरों का एक ही था कि खुदा एक है, तौहीद के बारे में, अल्लाह सुब्हानहू तआला के बारे में। तज़किरे से लोगों के लूत अलैहिस्सलाम से या नूह के लोगों ने पैगंबर से इनकार किया। इनकार करके लूत अलैहिस्सलाम का बिलवास्ता वो तमाम तर पैगंबरों का इनकार कर रहे हैं। उसने कमाल देखिए, वजाहत देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सोच सकते हैं कि ये गलती है, ये गलती नहीं। इसी तरह अनीस सुरोज जैसे लोग कहते हैं कि कुरान कहता है कुन फयकून, हो जा सो हो गया। होना चाहिए था कुन फकाना, हो जा वो हो गया था। मैं मानता हूँ फेल माजी कुन फकाना ही है अरबी में, ये कुन फयकून नहीं। लेकिन कुन फयकून कहीं ज्यादा बरतर है। ये कहता है अल्लाह कर सकता था, कर सकता है, कर सकेगा, माजी, हाल और मुस्तकबिल। शुक्रिया डॉक्टर नाइक। हम अगला सवाल लेंगे सामने उस भाई से, डॉक्टर विलियम कैम्बल के लिए। जी डॉक्टर कैम्बल, ये एक नहायत पुरखुलूस सवाल है इस आयत के मुतालिक कुछ जानने के लिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यसू की खिदमत सिर्फ 3 साल के लिए थी। यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाले हैं, उनसे बपतिस्मा लेने के बाद तो यसू दूसरी ताकतवर तरीन हस्ती खुदा के बाद, खुदा का बेटा, उनकी क्या खिदमत हैं? उनकी इब्तिदाई जिंदगी में पहले साल से लेकर 27वें या 28वें साल तक उनकी नुमाया खिदमत क्या हैं? ये तो है, माफ कीजिएगा डॉक्टर कैम्बल, ये तो मौजू नहीं आज की रात का। नहीं, आप सवाल बदल लें। किताब के आगाज में डॉक्टर कैम्बल ने तस्करा किया कि जुल्करनैन का कुरान की सूरह नंबर 18 से, यानी कि सूरह कहफ से, और ये कहा कि जुल्करनैन से मुराद सिकंदर आजम है। क्या आप ये साबित कर सकते हैं कि आपको कैसे इल्म हुआ कि जुल्करनैन ही सिकंदर आजम है? मैंने सिर्फ इसे पढ़ा जो तफसीर थी यूसुफ अली की, लेकिन कता नजर इस बात की कि आया वो सिकंदर आजम था या कोई और,
کہ سورج یعنی سورج شفاف پانی کی دلدل میں غروب نہیں ہوتا، اور یہ بات بہت تفصیل سے کہی گئی ہے۔ جی شکریہ۔ جی بہن، سوال ڈاکٹر ذاکر کے لیے۔ میں نہیں جانتی مسیح آیات کو، لیکن بائبل کہتی ہے جب یونس علیہ السلام 3 دن اور 3 راتیں مچھلی کے پیٹ میں تھے، اس طرح ابن آدم بھی ہوں گے 3 دن اور 3 راتوں تک زمین کے قلب میں۔ کیا حضرت عیسیٰ نے سائنسی اعتبار سے یونس علیہ السلام کی علامت پوری کی؟ بہن حوالہ دے رہی ہے بائبل کی آیت کا، متی کی انجیل باب نمبر 12 آیت نمبر 38 تا 40۔ جب لوگوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہمیں نشانیاں دکھائیں، ہمیں معجزہ دکھائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تمام بدکار اور زناکار نسل والے نشانیوں کو مانگتے ہیں، تمہیں کوئی نشانی نہیں دی جائے گی لیکن یونس کی، جیسے کہ یونس رہے 3 دن اور 3 راتوں تک رہے ویل مچھلی کے پیٹ میں، سو اس طرح ابن آدم 3 راتیں اور 3 دن زمین کے قلب میں رہے گا۔ نشانی ہے یونس کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ تمام ترنڈے ایک ٹوکری میں ڈال دیے۔ اگر آپ یونس کی علامت کی طرف جائیں، یونس کی کتاب 2 صفحات سے بھی کم ہے اور ہم میں سے اکثر جانتے ہیں، اور اگر آپ تجزیہ کریں کہ یونس رہے 3 راتیں اور 3 دن، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم سب جانتے ہیں انجیلوں میں سے کہ وہ سولی پر چڑھائے گئے۔ ایک مفروضاتی کہانی، مفروضاتی، رات گئے انہیں سولی سے اتار لیا گیا اور ایک قبر میں رکھ دیا گیا، اور اتوار کی صبح کو اگر آپ دیکھیں کہ پتھر ہٹا دیا جاتا ہے اور قبر بالکل خالی ہوئی ہوتی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گنبد میں رکھا گیا جمعے کی رات کو، جمعے کی رات وہ گنبد میں تھے، جمعے کی رات وہ وہاں تھے، ہفتے کی صبح کو 1 دن، 1 رات 1 دن، اور وہ وہاں تھے ہفتے کی رات، تو 2 راتیں اور 1 دن، 2 راتیں اور اتوار کی صبح گنبد خالی تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں رہے 2 راتیں اور 1 دن، یہ 3 دن اور 3 راتیں تو نہیں تھیں۔ ڈاکٹر ولیم کیمبل جواب دیتے ہیں اپنی کتاب میں کہ دن کے ایک حصے کو 1 دن کے طور پر لیا جا سکتا ہے، اور اگر ایک مریض میرے پاس آتا ہے جو بیمار ہوا ہفتے کی رات کو اور پیر کی صبح کو، اگر میں اس سے پوچھوں تم کتنی دیر سے بیمار ہو، وہ کہے گا 3 دن سے۔ میں اتفاق کرتا ہوں، ہم آہنگی سے میں متفق ہوں، میں فراغ دل ہوں۔ آپ کہتے ہیں دن کا پورا حصہ 1 دن ہے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔ ہفتے کی رات دن کا حصہ 1 دن، اتوار دن کا حصہ مکمل دن، ٹھیک ہے، پیر دن کا حصہ مکمل دن، کوئی بات نہیں۔ اگر مریض کہتا ہے 3 دن تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن کوئی مریض کبھی یہ نہیں کہے گا کہ 3 دن اور 3 راتیں۔ میں دعویٰ کرتا ہوں، میں الحمدللہ ملا ہوں کئی مریضوں سے، مجھے کوئی ایک بھی مریض ایسا نہیں ملا، یہاں تک کہ عیسائی مبلغین بھی جنہوں نے مجھے کبھی بتایا ہو کہ وہ بیمار تھے، یعنی کہ گزرے ہوئے پرسوں، کہ وہ کہے کہ میں 3 دنوں 3 راتوں سے بیمار ہوں، تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ 3 دن، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں 3 دن اور 3 راتیں۔ تو یہ ریاضی کی غلطی ہے، سائنسی اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام نے یہ ثابت نہیں کیا، اور اس کے علاوہ پیشن گوئی کہتی ہے جیسا کہ یونس تھے اسی طرح ابن آدم بھی ہوگا۔ یونس کیسے تھے؟ کیسے تھے یونس؟ ویل کے پیٹ میں، ویل مچھلی کے پیٹ میں، مردہ یا زندہ؟ زندہ۔ جب انہیں باہر اگلا گیا تو وہ تھے زندہ، ویل کے پیٹ کے اندر، وہ سمندر میں گھومتے رہے، مردہ یا زندہ؟ زندہ۔ انہوں نے اللہ کی عبادت کی، مردہ یا زندہ؟ زندہ۔ مچھلی نے انہیں ساحل پر اگل دیا، مردہ یا زندہ؟ زندہ 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 زندہ۔ جب میں پوچھتا ہوں عیسائیوں سے کیسے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر، گنبد کے اندر، مردہ یا زندہ، وہ مجھے کہتے مردہ۔ زندہ؟ الحمدللہ۔ کیا یہ کسی عیسائی نے کہا ہے؟ اگر وہ زندہ ہے الحمدللہ تو وہ سولی پر نہیں چڑھے، اگر وہ مردہ ہیں تو انہوں نے علامت کی تکمیل نہیں کی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا ویڈیو کیسٹ، کیا حقیقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا؟ میں نے ثابت کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا تھا، جیسا کہ قرآن کہتا ہے سورۃ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 157 میں، وما قتل وما صلبوہ، انہوں نے اسے نہیں مارا نہ ہی اسے مصلوب کیا، بس کچھ ایسا ظاہری دکھائی دیا تھا۔ شکریہ ڈاکٹر نائک۔ سوال ہے ڈاکٹر ولیم کیمبل۔ ڈاکٹر کیمبل، جیسا کہ آپ ایک میڈیکل ڈاکٹر ہیں، کیا آپ وضاحت کر سکتے ہیں سائنسی لحاظ سے ان مختلف طبی پہلوؤں کو جو بائبل میں ہیں، کیونکہ آپ نے اپنے جوابی دور میں ان کا جواب ہی نہیں دیا؟ مثلا خون کا استعمال جراثیم کش کے طور پر، تلخ پانی کا ٹیسٹ زناکاری کے لیے، اور سب سے اہم یہ کہ عورت ناپاک رہتی ہے دگنا عرصے تک جب وہ جنم دیتی ہے ایک بیٹی کو بیٹے کے مقابلے میں۔ آپ کے سوال کا شکریہ، میں ابھی جواب دیتا ہوں، لیکن ڈاکٹر ذاکر کو وہ سوالات مل رہے ہیں جو کسی عیسائی کو ملنے چاہیے۔ بیان کیا گیا ہے کہ اگلے ہی دن تمام تر تیاری کے بعد بڑے پادری اور رہنما دعا گو لوگوں کے پاس آئے اور کہا، جناب ہمیں بہت اچھی طرح یاد ہے کہ جب وہ زندہ تھے انہوں نے تو کہا تھا مجھے 3 دن بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے،
तो इसलिए कब्र को मुस्तहकम करने का हुक्म जारी करें तीसरे दिन तक। सो वो दो माने अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां तक मेरा ताल्लुक है, ये तमाम अल्फाज तीसरे दिन के बाद एक जैसे हैं। जो कुछ भी हो यस्सु के साथ कब्र में। और दूसरी चीज है उनका दोबारा जी उठना। फिर एक और बात है, जब यस्सु गिरफ्तार हुए जुमेरात की रात को, हजराए करम खामोश रहिए, ऐसे बात नहीं बनेगी, सब्र करें। तीसरे दिन, मेरा मतलब है तीसरे दिन जब उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन्होंने कहा मेरा वक्त आन पहुंचा है, इसलिए मैं 3 रातें और 3 दिन शुमार करता हूं। अब आपने मुझसे बाइबल में इन मुकामात के बारे में पूछा है। मेरा ईमान है कि बाइबल खुदा की लिखी हुई है और खुदा ने इन मुकामात को इसमें रखा है। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं कि मैं वजाहत करता फिरूं कि खुदा ने क्या कहा। मेरा ईमान है कि खुदा ने ये बातें बाइबल में रखी हैं। और अब हम आखिरी सवाल लेंगे माइक से, उस भाई से जो पीछे डॉक्टर जाकिर के लिए। फिर हम शुरू करेंगे सवालात इंडेक्स कार्ड से। ये आखिरी सवाल है, जैसा कि हमारा वक्त महदूद है। अजराह करम ओके डॉक्टर जाकिर के लिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असलम रऊफ है और मैं तालिब इल्म हूँ और आजकल हयातियात पढ़ रहा हूँ। मेरे उस्ताद मुझे अमले इर्तिका पढ़ा रहे हैं और मैं हैरान हूँ इस्लामी जवाब पर अमले इर्तिका से मुतल्लिक। और अभी आप वजाहत कर दें मुख्तसरन कि इस्लाम क्या कहता है अमले इर्तिका और अमले तख्लीक से मुतल्लिक। शुक्रिया। भाई ने सवाल पूछा, जैसे डॉक्टर कैम्बल ने बेतकल्लुफी से जवाब दिए, मैं भी बेतकल्लुफी से जवाब दूंगा। कहीं नहीं है कुरान में हवाला सिकंदर आजम का, यहाँ लिखा है जुल्कुरनैन, ना कि सिकंदर आजम। अगर कुछ मुफस्सरीन ने गलतियां की हैं तो ये गलती है तफसीर की, इंसानों ने गलती की है, ना कि खुदा के कलाम में। बाइबल के हवाले से कि दुनिया यसाया में दायरा है, कोई बात नहीं, ये कहती है दायरा, ना कि गुंबदनुमा। एक मुकाम पर बाइबल कहती है चपटी, दूसरी जगह पर दायरा। अगर मुत्तफिक है दोनों आयात से तो ये टिकिया जैसी दिखेगी। देखें, क्या ये जमीन जैसी दिखाई देती है? यूं ये दायरे नुमा है और यूं ये चपटी है। ये तो जमीन नहीं है। कुरान में हयातियात के हवाले से और अमले इर्तिका के बारे में भाई ने 2 सवाल पूछे हैं। मुझे एक का जवाब देना है, ये दूसरे का मुझे नहीं पता। सिर्फ एक। कौन सा, पहला या दूसरा, हयातियात या अमले इर्तिका? अमले इर्तिका बेहतर है, यही बेहतर है। आप चुन रहे हैं, वो चुन रहे, क्योंकि उसका सवाल ही अमले इर्तिका के बारे में। 2 सवाल, पहले हयातियात फिर अमले इर्तिका। 2 सवाल, पहले हयातियात फिर अमले इर्तिका। आपके पास 3 मिनट है। चले ठीक है, मैं इत्तफाक करता हूँ साहिब सदर सैमिल नोमान साहब के साथ। मैं अमले इर्तिका का जवाब दूंगा। दुरुस्त जवाब के लिए आप देख सकते हैं मेरा वीडियो कैसेट कुरान और जदीद साइंस। जब आप अमले इर्तिका के बारे में सोचते हैं तो आप सोचते हैं डार्विन के नजरिए से। और डार्विन जहाज पर गया, HMS ब्यूगल नामी, वो कैलाट्रॉपिक्स जजीरे पर गया और उसने परिंदों को चोंचले करते हुए देखा ताकों पर, इस मुशाहिदे की बुनियाद पर कि परिंदों की चोंचें लंबी और छोटी दिखाई दी थी। उसने गौर फिक्र किया कुदरती इंतखाब पर। उसने दोस्त को खत लिखा जिसका नाम थॉमस थॉम्पटन था 19वीं सदी में। उसने कहा कि मेरे पास कोई सबूत नहीं तायद करने का अपनी कुदरती इंतखाब का, लेकिन क्योंकि इसने मेरी मदद की इल्म जनैन के इब्तदाई अज़ा के बारे में तशहीर देने में, इसलिए मैंने ये पेश किया। डार्विन का नजरिया कोई किसी किस्म की हकीकत नहीं रखता, ये सिर्फ नजरिया है। मैंने बिल्कुल वादे किया अपने बयान के आगाज में, कुरान जा सकता है नजरियात के खिलाफ, क्योंकि नजरियात उल्टा मोड़ लेते हैं, लेकिन कुरान खिलाफ नहीं होगा किसी मुसलमान हकीकत के। और स्कूल में हम पढ़ते हैं डार्विन का नजरिया जैसे कोई हकीकत हो, ये हकीकत नहीं। यहाँ कोई साइंसी सबूत मौजूद नहीं, ये कुछ गुमशुदा कड़ियां हैं। इसलिए अगर कोई अपने दोस्त की बेइज्जती करना चाहे अपने साथी की, वो कहेगा अगर तुम मौजूद होते डार्विन के जमाने में तो डार्विन का नजरिया सच साबित हो जाता। इशारतन ये कहना कि तुम लंगूर लगते हो। कई गुमशुदा कड़ियां हैं डार्विन के नजरिए में। और मुझे ऐसे 4 ढांचों का पता है जो मौजूद हैं, यानी होमिनाइड्स, यानी लूसी, अथेरोपिटिकस और उनका मददगार होमो इरेक्टस, निएंडरटॉलमैन, क्रो-मैग्नन। तफसील के लिए आप देख सकते हैं मेरा वीडियो कैसेट। सालमी हयातियात के बारे में हेंसी क्रीक के मुताबिक वो कहता है नामुमकिन है कि हम बंदरों से इर्तिका पजीर हुए हों। DNA कोडिंग के हवाले से ये नामुमकिन है। आप देख सकते हैं मेरा वीडियो कैसेट, ये पूरी तफसील देगी। हयातियात के कुछ हिस्सों के मुतालिक मुझे कोई एतराज नहीं। कुरान कहता है सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 के वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य अफला युमिनून, हमने पैदा किया हर जिंदा चीज को पानी से, क्या तुम यकीन नहीं करते? आज हम जानते हैं कि हर कोई जिंदा मखलूक का बुनियादी जुज खुलियां है जिसमें साइटोप्लाज्म होता है जो 90% पानी पर मुश्तमिल है। हर जिंदा मखलूक दुनिया में जिसमें तकरीबन 50 से 90% पानी होता है, अंदाजा करें।
अरब के सहराओं में कौन अंदाजा करेगा कि हर चीज पानी से बनी है? कुरान ने ये कहा है 1400 साल पहले। और इसलिए डॉक्टर नाइक, शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम शुरू करेंगे सवालात पर्चियों पर कागज की। हमारे पास ये है डब्बा डॉक्टर विलियम कैम्बल का और ये डब्बा है डॉक्टर जाकिर नाइक का। हम इनकी नामों वाली जानिब फेर देते हैं ताकि ये ना देख सकें, आप लोग देख सकें। वो इनमें से सवालात उठाएंगे, बगैर इस डिब्बे को देखे और इसका जवाब देंगे। जो भी पर्ची वो उठाएंगे उन्हें इसका जवाब देना होगा। पहला सवाल है डॉक्टर विलियम कैम्बल के लिए और अगला सवाल है डॉक्टर जाकिर। ये दोनों सवालात पहले ही उठा सकते हैं ताकि हमारा वक्त जाया ना हो उनके सवालात पढ़ने में। सो एक एक सवाल होगा। हम इजाजत देते हैं डॉक्टर विलियम कैम्बल को कि वो अपना सवाल पढ़ लें ताकि मुश्किल ना हो। मैं सवाल तो पढ़ूंगा, मगर पहले ये बात करना चाहता हूं कि हर चीज पानी से बनी है। ये कतई तौर पर वाजे है। जब आप किसी कीड़े मकोड़े को मारते हैं, ये पानी से बना है। हर जानदार पानी से बना है। ये काबिल मुशाहिदा बात है, मोजज़ा नहीं। ठीक है डॉक्टर कैम्बल, अगर आप पैदाइश में पाए जाने वाले तजादात का जवाब नहीं दे सकते तो क्या ये साबित नहीं होता कि बाइबल गैर साइंसी है और ये खुदा का कलाम नहीं? मैं मानता हूं कि मुझे कुछ मुश्किलात का सामना है, लेकिन मेरे पास तकमील शुदा पेशन गोइयां मौजूद हैं और ये मेरे लिए बहुत अहमियत रखती हैं। ये पेशन गोई कहती है यसु संगे बुनियाद है और उनकी बुनियाद रखी गई है शागिर्दों और खुदा के पैगंबरों पर, और पैगंबरों ने पेशन गोइयां की और शागिर्दों ने उन्हें लिखा जब खुदा ने पेशन गोइयों की तकमील की। मैं जानता हूं ये आपके सवाल का जवाब नहीं, लेकिन मेरा ईमान मसीह पर है जो मेरा निजात दहिंदा है। ठीक है, शुक्रिया। अब आप डॉक्टर नाइक। इबारत और तर्जमा दो मुख्तलिफ अल्फाज हैं जो मुख्तलिफ मानी देते हैं। बाइबल में इंग्लिश इबारत और तर्जमा, क्या साइंसी तौर पे तर्जमा और इबारत साबित हो सकता है कि ये दोनों बिल्कुल एक ही हैं? क्या खुदा ने मूसा पर और ईसा अलैहिस्सलाम पर वही इंग्लिश में नाजिल की? ये बहुत अच्छा सवाल है। क्या इबारत और तर्जमा एक जैसा हो सकता है? नहीं, इबारत और तर्जमा दोनों बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते, दोनों करीब करीब हो सकते हैं। मौलाना अब्दुल मजीद दरियाबादी के हवाले से उन्होंने कहा सबसे मुश्किल तरीन किताब दुनिया में तर्जमा करने के लिए कुरान करीम है, क्योंकि कुरान की जुबान इतनी फसी है, ये आला दर्जे बरतर है, आलीशान है और अरबी के एक लफ्ज के कई मानी है। यही वजह है कि कुरान का तर्जुमा करना बहुत मुश्किल है, ये एक जैसा नहीं। अगर यहाँ कोई गलती है तर्जुमे के अंदर, ये इंसानी हाथ का काम है। जिस इंसान ने तर्जुमा किया है उसका कसूर है, ना कि खुदा ताला का। अब रहा सवाल कि क्या बाइबल इंग्लिश में नाजिल हुई? नहीं, बाइबल इंग्लिश में तो नाजिल नहीं हुई थी। इसका पुराना ऐदनामा इब्रानी में है और नया ऐदनामा यूनानी में। अगरचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बोलते थे इब्रानी जुबान, लेकिन असल मुसविदा जो हमारे पास है ये यूनानी जुबान में है। पुराना ऐदनामा असल इब्रानी जुबान वाला है ही नहीं। क्या आपको इल्म है? इब्रानी तर्जुमा पुराने ऐदनामे का यूनानी जुबान में किया गया है। यहाँ तक कि असल पुराना ऐदनामा जो कि इब्रानी जुबान में था आज वो मौजूद ही नहीं, और यहाँ हमें दोहरा मसला है। कोई ताजुब नहीं कि आपके यहाँ नकल नवीसी होती है, लेकिन कुरान अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल असल अरबी मतन में मौजूद है। इसे आप अल्हम्दुलिल्लाह साइंसी एतबार से साबित कर सकते हैं कि ये वही है। रही बात ये कि वही का नुज़ूल हुआ था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे। मैं कह चुका हूँ अपने पहले ही जवाबात और बयानात में कि हमारा ईमान है कि कुरान कहता है सूरह रोयद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कई एक इल्हामी किताबें नाजिल की। नामों से सिर्फ 4 बयान है, तौरात, जबूर, इंजील और कुरान। तौरात एक वही है जो दी गई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, जबूर एक वही है जो कि दी गई हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को, और फिर इंजील वो वही है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई, और कुरान एक आखिरी और हतमी वही है जो कि खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई। डॉक्टर नाइक आपका लेकिन मौजूदा बाइबल वो इंजील नहीं है जिस पर हम ईमान रखते हैं जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। डॉक्टर कैम्बल। हमारे पास एक और है। लेकिन मौजूदा अंजील वही है जो बरसों से चली आ रही है। हमारे पास मतन तकरीबन 75% हिस्से 180 ईस्वी के हैं जो 100 साल के बाद यूहन्ना ने तहरीक किए। उस वक्त ऐसे लोग जिंदा थे जब उसने लिखा। उस मौका पर जिन लोगों को इल्म था वो जानते थे, जिन लोगों के बाप दादा यूहन्ना के तवस्सुस से ईमान रखते थे। ये अच्छी गवाही है और अच्छा मतन है कि बाइबल एक मुस्तनद तारीख है।
تو اب سوال، جو ممکنات آپ نے پیش کی یہ عظیم شماریات ہیں، شکریہ، لیکن معاملے میں خدا کے یہ مکمل طور پر حقیر ہے، لیکن خدا تو بااختیار ہے، جسے چاہے پسند کر سکتا ہے۔ یقیناً قطع نظر امیری، غریبی یا کسی بھی اور چیز سے، تو آپ کا مفروضہ کیسے لاگو ہو سکتا ہے؟ یسوع غریب تھے، وہ پسند کیے گئے تھے، اس نے کہا ابن آدم کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں سر چھپانے کے لیے۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں نے نہیں دیکھا کہ شماریات اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ شماریات تو یہ تھیں کہ کتنے لوگ ان پیشن گوئیوں کی تکمیل کر سکے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ بات مدد کرے گی، شکریہ۔ شکریہ۔ آئیے ڈاکٹر نائک۔ آئیے، شکریہ۔ یہ ثابت کرتے کرتے، یہی کچھ ثابت کرتے کرتے کہ قرآن ہم آہنگ ہے جدید سائنس کے ساتھ۔ کیا ہوگا اگر جدید سائنس ہی غلط ہو تو؟ کیا قرآن ہمیشہ تبدیل ہوتا ہے سائنسی تبدیلیوں کے ساتھ؟ یہ ایک بہت ہی اچھا سوال ہے، یہ نہایت ہی اہم سوال ہے، اور ہم مسلمانوں کو کافی محتاط ہونا چاہیے ہم آہنگی ثابت کرنے کے لیے قرآن اور جدید سائنس میں۔ اسی لیے میں نے کہا تھا اپنے بیان کے آغاز میں صرف ان پر بات کروں گا جو کہ وہ سائنسی حقائق ہیں جو کہ تسلیم شدہ ہیں، اور یہ سائنسی حقیقت جو تسلیم شدہ ہے، مثال کے طور پر کہ زمین گول ہے، یہ غلط نہیں ہو سکتا تھا۔ تسلیم شدہ سائنس الٹا موڑ نہیں لے سکتی، لیکن غیر تسلیم شدہ سائنس قیاس آرائیوں اور نظریات کی طرح الٹا موڑ لے سکتی ہے۔ میں جانتا ہوں مسلم علماء کو جنہوں نے نظریہ ڈارون کو جوڑنا چاہا قرآن کے ساتھ، یہ حماقت ہے۔ سو اس لیے ہمیں حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے کہ کوشش کریں ثابت کرنے کے لیے جدید سائنس کو۔ ہمیں محتاط ہونا چاہیے کہ یہ معاملہ تسلیم شدہ ہے یا پھر غیر تسلیم شدہ۔ اگر یہ تسلیم شدہ ہے الحمدللہ سائنسی ثبوتوں کے ساتھ، تو قرآن کبھی بھی اس کے خلاف نہیں ہوگا۔ اگر یہ قیاس آرائیاں ہیں تو یہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں، جیسا کہ بگ بینگ کا نظریہ، یہ پہلے قیاس آرائیاں تھیں، آج ٹھوس ثبوت کے بعد سمادھی مادے کے متعلق تحقیق اسٹیفن ہاکنگ کے نزدیک یہ حقیقت ہے۔ تو بگ بینگ کا نظریہ آج ایک حقیقت ہے، گزرے ہوئے کل میں یہ قیاس آرائیاں تھیں، جب حقیقت بنی میں نے استعمال کیا۔ آپ جانتے ہیں مفروضات کہتے ہیں کہ بنی نوع انسان جینز کے صرف ایک جوڑے سے پیدا ہوئے ہیں، آدم اور حوا۔ میں استعمال نہیں کرتا کیونکہ اسے سائنس تسلیم نہیں کرتی، اگرچہ یہ قرآن کے ساتھ ملتا ہے، یہ قرآن سے مطابقت رکھتا ہے کہ ہم وجود میں آئے ہیں ایک جوڑے سے آدم اور حوا کے، سلامتی ہو ان پر، لیکن میں استعمال نہیں کرتا کیونکہ یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت نہیں ہے۔ تو اس لیے کوئی باہمی ربط ثابت کرتے وقت قرآن کے درمیان اور سائنس وغیرہ کے ساتھ اسے دیکھیے، آپ صرف ان سائنسی حقائق کا استعمال کریں جو کہ تسلیم شدہ ہیں، مفروضے یا قیاس آرائیاں نہیں، کیونکہ قرآن کہیں زیادہ برتر ہے جدید سائنس سے۔ میں سائنس کی مدد سے یہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کر رہا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہرگز نہیں۔ میں تو یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ہم مسلمانوں کے لیے قرآن ایک حتمی معیار ہے، دہریوں کے لیے اور غیر مسلموں کے لیے شاید سائنس حتمی معیار ہو سکتا ہے۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ میں وہ معیار استعمال کر رہا ہوں، وہ پیمانہ دہریوں کا اور اس کا موازنہ پیش کر رہا ہوں مسلمانوں کے پیمانے قرآن سے۔ میں یہ ثابت بالکل نہیں کر رہا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے سائنس کی مدد سے۔ میں تو یہ کر رہا ہوں کہ جب بھی کوئی دلیل پیش کرتا ہوں تو قرآن کی عظمت و برتری دکھاتا ہوں کہ جو بات آپ کی سائنس نے ہمیں کل بتائی تھی، قرآن نے ہمیں بتا دیا 1400 سال پہلے۔ میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا پیمانہ، مسلمانوں کا پیمانہ قرآن کہیں زیادہ برتر ہے آپ کے پیمانے سائنس سے، اس لیے آپ کو ایمان لانا چاہیے قرآن پہ جو کہیں زیادہ برتر ہے۔ امید ہے سوال کا جواب ملا۔ شکریہ ڈاکٹر نائک۔ جی ڈاکٹر کینڈل، یہ آخری معاف کیجیے گا، صرف 2 سوالات باقی ہیں مقررین کے لیے۔ سامعین سے گزارش ہے کہ ٹھہریں کچھ وقت کے لیے۔ اب ہمارے پاس کاغذ پر آخری سوال ہے ڈاکٹر کیمبل کے لیے، اس کے بعد آخری سوال ہے ڈاکٹر ذاکر کے لیے، اور آپ سے التماس ہے کہ آپ انتظار کریں۔ یہ بالکل گزشتہ سوال کی طرح ہے۔ واقعی ڈاکٹر کیمبل متفق ہیں ڈاکٹر ذاکر سے، انہوں نے جن غلطیوں کی نشاندہی کی وہ غلط نہیں ہے اور وہ ان کا جواب نہیں دے سکے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر کیمبل متفق ہیں کہ بائبل میں غلطیاں ہیں، تو یہ خدا کا کلام نہیں ہے۔ کچھ چیزیں بائبل میں ایسی ہیں جن کی وضاحت میں نہیں کر سکتا، جن کا جواب میرے پاس فی الوقت نہیں ہے، اور میں اس بات کا آرزومند ہوں کہ میں دیکھوں کہ کب اس کا جواب آئے۔ بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ جن کی آثار قدیمہ نے تصدیق کر دی ہے کہ بائبل برحق ہے، قصبوں کی باتیں اور کون بادشاہ تھا اور کئی ایسی چیزیں۔
मैं ये समझता हूँ कि ये सबूत काफी है कि बाइबल एक अच्छी और तारीखी किताब है। शुक्रिया डॉक्टर कैम्बल। जरा एक मिनट रुकिए। ओ अच्छा, सवाल है, क्या कुछ और भी रियाजियाती तजादात हैं बाइबल में? क्या बाइबल में, ये क्या है, बाइबल या इस्लाम, माफ कीजिएगा, क्या और भी रियाजियाती तजादात हैं इस्लाम में? क्या कुछ और भी हैं? ये बाइबल से या इस्लाम से मुझे नहीं पता, मैं दोनों का जवाब दूंगा। क्या कुछ और भी हैं? ये बाइबल से मुतालिक होना चाहिए क्योंकि मैंने इसके तजादात की बात की। बहरहाल इस्लाम के मुतालिक कुरान कहता है सूरत निसा में सूरत 4 आयत नंबर 82, अफला यतदब्बरून कुरान वलौ काना मिन इंदि गैरिल्लाह लवजदू फी इख्तिलाफुन कसीरा। क्या वो कुरान को गौर से नहीं समझते? अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और तरफ से होता तो इसमें कई किस्म के तजादात होते, इसमें एक भी नहीं है। और ज्यादा तजादात के मुतालिक बाइबल में तो 5 मिनट नाकाफी होंगे, अगर ये मुझे 5 दिन भी दे दे तो मुश्किल होगा। खैर मैं कुछ का जिक्र करूंगा। ये लिखा है दूसरे सलातीन में बाब नंबर 8 आयत नंबर 26, वो कहती है कि इक्जिया वो 22 साल का था जब उसने हुकूमत शुरू की। दूसरा तवारीख बाब नंबर 22 आयत नंबर 2 कहती है कि वो 42 साल का था जब उसने हुकूमत शुरू की। क्या वो 22 साल का था या फिर वो 42 साल का था? रियाजियाती तजाद। इसके अलावा दूसरे तवारीख में बाब नंबर 21 आयत नंबर 20 कहती है कि यहुराम जो कि बाप था इक्जिया का, उसने हुकूमत की 32 साल की उम्र में और हुकूमत की 8 साल तक, और वो 40 साल की उम्र में मर गया। इसके फौरन बाद इक्जिया बन गया नया हुक्मरान और उम्र थी 42 साल। बाप मरा 40 साल की उम्र में, फौरन बेटा हुकूमत संभालता है जिसकी उम्र है 42 साल। बेटा कैसे हो सकता है 2 साल बड़ा अपने बाप से? आप यकीन करें, हत्ता के हॉलीवुड की फिल्मों में आप ऐसा किरदार पैदा करने के काबिल नहीं होंगे। हॉलीवुड की फिल्मों में आप एक सिंग वाला घोड़ा पैदा कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया, यूनिकॉर्न, क्रोकोडाइसिस वगैरह, जिसका जिक्र बाइबल करती है, क्रोकोडाइसिस और अजदहे और सांप। लेकिन हॉलीवुड में भी आप नहीं दिखा सकते एक बेटा अपने बाप से 2 साल बड़ा। ये तो मौजज़ा भी नहीं हो सकता, हत्ता कि मौजज़े में भी मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। मौजज़े में किसी कवारी के यहाँ एक हस्ती तो पैदा हो सकती है, लेकिन मौजज़े में आप एक बेटे को नहीं देखेंगे अपने बाप से 2 साल बड़ा। मजीद अगर आप पढ़े, ये लिखा है बाइबल में दूसरे सैमुएल में बाब नंबर 24 आयत नंबर 9 के वहां जो लोग शामिल थे मैदान जंग में, फहरिस्त दी गई है इन लोगों की दूसरे सैमुएल के अंदर बाब नंबर 24 आयत नंबर 9, और वो कहती है वो लोग जिन्होंने हिस्सा लिया, इसराइल के 8 लाख लोगों ने इस जंग में हिस्सा लिया और 5 लाख मर्दों ने हिस्सा लिया यहूदा के। यही अगर आप दूसरी जगहों में देखें, पहला तवारीख बाब नंबर 21 आयत नंबर 5 कहती है कि पूरे 11 लाख लोगों ने, लिखा है, हिस्सा लिया मैदान जंग में इसराइल के मर्दों में से, और 10,460 मर्दों ने हिस्सा लिया यहूदा के। क्या वहां 8 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था इसराइल के मर्दों में से, या वहां थे 11 लाख लोग उस जंग में? वहां थे 5 लाख लोग यहूदा के जिन्होंने हिस्सा लिया, या 10,460 थे? ये एक वाज़ेह तदाद है। इसके अलावा यहां लिखा है बाइबल में, यहां दूसरे सैमुएल में बाब नंबर 6 आयत नंबर 23 के मीकल जो बेटी है सौल की, उसका कोई बेटा नहीं। दूसरा सैमुएल बाब नंबर 21 आयत नंबर 8, मीकल जो बेटी है सौल की, उसके 5 बेटे थे। एक जगह पर कहती है उसका कोई बच्चा नहीं, कोई बेटा कोई बेटी नहीं, दूसरी जगह 5 बेटे। मजीद अगर आप पढ़ें, यह लिखा है बाइबल में मती की अंजील में बाब नंबर 1 आयत नंबर 16, ये कहती है नस्ब नामे के बारे में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के, और इसी तरह लूका बाब नंबर 3 आयत नंबर 23, और वो कहती है कि यसू का बाप यूसुफ था और उसका बाप यकूब था। मती बाब 1 आयत नंबर 16 और लूका बाब नंबर 3 आयत नंबर 23, यसू का बाप यूसुफ था और उसका बाप एली था। क्या यसू के बाप यूसुफ के 2 बाप थे? आप क्या कहते हैं ऐसे शख्स को जिसके 2 बाप हों? या वो एली था या वो याकूब था? शुक्रिया डॉक्टर नाइक, बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये है डॉक्टर जाकिर नाइक। इसकी तकरीर सुनने के बाद हमें फ़ख्र है कि हम मुसलमान हैं और अल्लाह हम सबको ऐसा मुजाहिद बनाए। शायरी के दौर में भी कुरान और इस्लाम ने अपना लोहा मनवाया और आज
سائنس کے دور میں بھی اسلام نے اور قرآن نے اپنا لوہا منوایا۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔